On behalf of PIB, I welcome Secretary, Ministry of Mines, Sri Vivek Bhardwaj, Additional Secretary Lohiya ji, and Joint Secretary Mrs. Frida M. Nayak, and the other officers of the ministry, senior and others, as well as the national press who are available here. Now over to Frida Madam, please. Good afternoon, everybody. I welcome you all once again on behalf of Ministry of Mines, especially the media personnel. I thank you from the bottom of my heart for your presence here and the efforts being made by you to disseminate the information about the work being carried out by Ministry of Mines. Thank you very much. Today we have gathered here for the logo launch of Mining Startup Summit. This is going to be held at Mumbai on 29 May at IIT Mumbai. Ministry of Mines, in the last few years, through its series of reforms, have tried to create an atmosphere for the mining sector, enabling reforms, enabling environment, which will for the mining sector, which with the ultimate aim of creating the increasing mineral production. Technological advancement and innovation is a key for increasing mineral production. It has been noticed that as far as the mining sector in India is concerned, it's lagging behind in the technological advancement compared to the mining sectors abroad. The effort of the Ministry of Mines through this summit is to bring the startups and the mining industry on the same platform. In the last few years, with the emphasis of the Prime Minister on Atmanirbhar Bharat and encouragement to startup, we have a very good ecosystem of startups in India, which can provide good technological solutions to the mining industry. The effort is to bring them together. Mining Startup Summit is the brainchild of our secretary, and I would request him to share his thoughts behind this Mining Startup Summit with you all after the logo launch. So we can have a logo launch now. Can I ask to please dim the lights a bit so that the video can have a good visibility? Yes, that's good. So. साल था 2007। उस समय स्मार्टफोन्स काफ़ी कम थे। दो लड़के दीपेंद्र गोयल और पंकज चड्ढा आईआईटी से पास करके एक कंसल्टिंग कंपनी में काम कर रहे थे। रोज़ अखबारों के साथ रेस्टोरेंट लिस्टिंग्स, रेस्टोरेंट्स के एडवर्टाइजमेंट्स आते थे, फ्लायर्स आते थे। दोपहर में खाने के लिए हर एक की खोज खबर ली जाती थी, कौन सा अच्छा है, कहाँ जाना चाहिए। उनको ऐसा लगा कि इस सब को अगर डिजिटल कर दिया जाए तो सबको सुविधा होगी, और इसी तरह ज़ोमैटो का जन्म हुआ। हम में से ज़्यादातर लोगों ने ज़ोमैटो यूज़ किया हुआ है। इन्होंने क्या किया,
इन्होंने हमारी ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम करी। जैसे कि अगर आपको कंपेयर करना हो लाइफ इंश्योरेंस अलग अलग पॉलिसीज, तो हर जगह पता करने की बजाय अगर एक जगह ही पता चल जाए तो इससे समय की बचत होती है, खर्चे की बचत होती है। मैं देख रहा था कि माइन से $7 बिलियन का उत्पादन होता है हर साल। हम पूरे विश्व में आयरन ओर में चौथे नंबर पर हैं, बॉक्साइट के प्रोडक्शन में 5वें नंबर पर हैं। उसके बावजूद ज़्यादातर जो स्टार्टअप्स हैं वो फिनटेक में हैं, एडुटेक में हैं, ई कॉमर्स में हैं। मज़ेदार बात यह है कि 108 यूनिकॉर्न्स जो हैं उसमें से बिल्डिंग मटेरियल के ऊपर भी एक यूनिकॉर्न है, इंटीरियर डिजाइनिंग के ऊपर भी है जो कि यूनिकॉर्न बन गया है। लेकिन माइनिंग जहां हजारों करोड़ों रुपए का उत्पादन हर साल होता है वहां पर स्टार्टअप्स नहीं है। अब आप कहेंगे कि साहब ये माइनिंग में कहां से स्टार्टअप आ जाएंगे? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब एक ताप विद्युत घर थर्मल पावर प्लांट जब चलता है तब उसमें कोयले के एक निर्दिष्ट माप के हिसाब से उसमें कोयला डाला जाता है। अगर वो बहुत ज्यादा बड़ा होगा तो जो भट्टी है, जो पावर प्लांट है, उसमें वो अटक जाएगा। अगर अटक गया तो उसके लिए वो पूरा प्लांट बंद हो जाएगा और बहुत मुश्किल होगी। तो वहां पर एक आदमी खड़ा रहता है जो कि साइजिंग करता है उस कोल की। अब अगर पहले तो सिर्फ में होता है, साइजिंग भी होती है, सभी होती है, उसके बावजूद ये समस्या आती है। अब अगर इस तरह की व्यवस्था हो कि कुछ लेजर से देख पाए कि किसका क्या साइज है और अकॉर्डिंगली सॉर्ट आउट कर दे, कोई रोबो हो जो कि उसको निकाल दे, या मान लीजिए आयरन ओर का डंप पड़ा हुआ है। हमारे यहाँ तो जो पुराना कोलार में भारत गोल्ड माइन है वहां पर 50 मिलियन टन ओर पड़ा हुआ है जिसमें से सोना निकाल दिया गया है। अब उस एक जमाने में उसकी जो तकनीक थी उसमें मान लीजिए 10% अगर सोना है तो उससे नीचे नहीं निकल पाता था। आज की टेक्नोलॉजी में कोई ऐसा इजाद करे कि 10% से नीचे भी सोना निकाल जाए, कोई स्टार्टअप अगर इस तरह की रिसर्च करे, अगर क्रोमाइट की खानों में से निकल निकाला जा सके जिसका आज बहुत दाम है, या जो अंडरग्राउंड माइंस हैं उसमें जो माइनर है उसके साथ संवाद करने की, कम्युनिकेट करने की स्थिति बड़ी मुश्किल होती है। इस तरह की कोई वायरलेस टेक्नोलॉजी हो जिससे कि कम्युनिकेट कर दिया जाए, या जब फॉग आती है, धुंध आती है, बारिश होती है, तब ऐसी समस्याओं का उत्पादन पर फर्क पड़ता है। तो तमाम हजार तरीके के समस्याएं हैं, टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस हैं जो कि स्टार्टअप्स के लिए बहुत ही अनुकूल हैं। और इसीलिए हमने सोचा कि हम ऐसे स्टार्टअप्स को, और आपको जान के हर्ष होगा करीब 150 से ज्यादा स्टार्टअप इस माइनिंग समिट में हिस्सा लेंगे, और आईआईटी मुंबई से बेहतर कौन सी जगह हो सकती थी। तो हमने कोशिश करी है कि हम स्टार्टअप्स को एक जगह लाएं, हम बड़ी इंडस्ट्रीज को एक जगह लाएं, क्योंकि ये इंडस्ट्रीज ही हैं जो कि उनको बिजनेस अपॉर्चुनिटीज देंगी। उसके अलावा जो फंड मुहैया कराने के लिए फंडिंग एजेंसीज वहां पर होंगी। तो एक पूरा इकोसिस्टम हमने तैयार करने की कोशिश करी है। आप सबका समर्थन, आप सबकी शुभकामनाओं की हमें ज़रूरत है,
और हम आशा करते हैं कि ये पहला जो समिट है ये सफल होगा। धन्यवाद। हमारे देश में बहुत हैं। ये पहला समिट हमने रखा है, इसमें पहले समिट में सिर्फ इंडियन पार्टिसिपेंट्स ही आ रहे हैं. दिस वी आर टेस्टिंग द ग्राउंड विद द फर्स्ट समिट. Timing is from 10 to 6. Yeah, date is 29th May in IIT Mumbai. Yes, we will be sharing it. We have so far 20 industries have confirmed their participation. I mean, companies. 20 companies have confirmed their participation. Big industries. So there is something called mining 4.0, which is actually happening, and there's a lot of artificial intelligence also being used in mining. There's a lot of drone technology being used in mining. So if you see, mining is actually transforming. Apart from that, we really need to appreciate that with the energy transition, a lot of decarbonization is going to happen also in the mining industry. So there are huge business opportunities. I thought I covered that in my talk when I was saying that there are huge opportunities, and I also listed out the kind of opportunities that there are and the technological challenges that we face. For example, the material intensity of many substances. अब जैसे आपको बताएं कि जो लिथियम कोबाल्ट की जो बैटरी होती है उसमें 20% कोबाल्ट लगता था. आज की तारीख में नई टेक्नोलॉजी से सिर्फ 10% लगता है. मतलब मटेरियल जो लग रहा है, जो मिनरल लग रहा है, उसको कम कैसे किया जाए, एक वो तरीका होता है. दूसरा होता है कि जैसे लिथियम है, अगर बड़ा महंगा है तो क्या सोडियम से काम चल सकता है, क्या हाइड्रोजन से? तो सब्स्टिट्यूटेबिलिटी ऑफ मिनरल्स की बात होती है. तो बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस हैं, उनमें कोई कमी नहीं है. I think we'll stick to the startup summit today. Right? I think we can. इंडस्ट्री कितना है? 25,000. कितना बड़ा इंडस्ट्री आ रहा है? जो अलग अलग कंपनियां हैं वो करीब 20 के आसपास. तो क्या पैसा भी देंगे? I think we can conclude. Right? Any other question from any side? Thank you. Thank you so much. And please have lunch. And then, please, thank you.